good afternoon class. Today we start with the next chapter, that is capsule. So capsule is a solid unit dosage form in which medicament is enclosed in a water soluble shell or an envelope. Okay. So the capsule in which the drug is enclosed is made up of gelatin. Gelatin is obtained from the skin of the pork or bones, animal bones. Mainly capsules are used for oral delivery, but nowadays capsules may also use in other delivery system. For example, अगर आपको ophthalmic drug delivery system करनी, in that case we also use capsules. For rectal vaginal delivery we can also use capsules. Okay, so next is the advantages of capsules. अगर आपकी ड्रग, if the drug is unpleasant in odor or unpleasant in taste, then it can be administered by using the capsule. Or if when it reaches to the gastric pH, it dissolves in the gastric pH and the rapid release of medicament in the stomach is takes place. They are smooth and become very slippery when moist and can easily be swallowed. They are attractive in appearance. These are the few advantages of capsules. Next is the disadvantage. If the drug is hygroscopic nature, then in that case capsules are not used. For concentrated preparation in which previous dilution are necessary, for that type of preparations capsules are not used. Okay, so this is about little introduction about the capsule advantage and disadvantage. Next type of capsules, there are two type of capsules, hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. Okay, अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो जो ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का जो कैप्सूल है इट इज कॉल्ड एज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, और जो एक साइड में जो एकदम पूरा ऑरेंज कलर का कैप्सूल है इट इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स. ठीक है, दोनों ही कैप्सूल में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो जिलेटिन होता है. जिलेटिन मेनली यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट about the component that is used in the capsule cells are wetting agent, preservative, colorant, gelatin and plasticizer. Okay, so these are the components that are used in the capsule cell. ठीक है, the major component that is used in both type of capsule cell is gelatin. ठीक है बेटा, आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो जो कैप्सूल ऑयल का जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज जिलेटिन. सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज प्लास्टिसाइजर. प्लास्टिसाइजर इज एडेड टू द जिलेटिन solution because it reduce the rigidity of the polymer and also provide the flexibility to the gelatin shell. ठीक है, तो प्लास्टिसाइजर की अगर कंसंट्रेशन जिलेटिन सोल्यूशन में ज़्यादा होगी तो जो रिजल्टिंग कैप्सूल बनेगा वो सॉफ्ट नेचर का होगा और सॉफ्ट कैप्सूल्स होंगे. ठीक है, अगर प्लास्टिसाइजर की कंसंट्रेशन जिलेटिन सोल्यूशन में कम होगी देन हार्ड टाइप के कैप्सूल सेल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो मेनली जब प्लास्टिसाइजर दैट आर यूज्ड इन द केस ऑफ कैप्सूल्स आर ग्लिसरीन, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. ठीक है, नेक्स्ट इज द वेटिंग एजेंट. वेटिंग एजेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप कैप्सूल सेल्स को बनाने के लिए जो स्टेनलेस स्टील पिन को यूज किया जाता है या कह लीजिए जो मोल्ड यूज किया जाता है, उन मोल्ड को जिलेटिन सोल्यूशन में जब डाला जाता है तो यूनिफॉर्मली जो पूरा सोल्यूशन है उस मोल्ड के ऊपर आ जाए, इसके लिए हम वेटिंग एजेंट को यूज करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द मेनली जो वेटिंग एजेंट यूज किया जाता है इन केस ऑफ कैप्सूल्स है दैट इज SLS. ठीक है, सल्फा हाइड्रोलैरिल सल्फेट. ठीक है, इट एंश्योर द lubricated metal modes are uniformly covered when it is dipped into the gelatin solution. ठीक है, next is the preservative. Preservative added to the capsule cell to prevent the bacterial growth. ठीक है, तो जो मेनली preservative यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ कैप्सूल सेल they are methyl, ethyl and propyl hydroxy benzoate. ठीक है, नेक्स्ट इज द कलरेंट. कलरेंट आप यूज करते हैं कैप्सूल सेल्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो जो मेनली कलरेंट दैट आर यूज्ड इन द कैप्सूल सेल्स आर एजोडाइज, xanthine डाइज एंड आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स. ठीक है, अगर आपको ओपेक टाइप का कैप्सूल चाहिए इन दैट केस टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड which provide the opacifier to the capsule cell. ठीक है, क्लियर हुआ कंपोनेंट्स? बेटा क्लियर हुआ है? These are the components that are used with gelatin. Okay, next
वाई वी यूज जिलेटिन इन केस ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। जो मेजर कंपोनेंट है कैप्सूल सेल्स को बनाने के लिए जिलेटिन है। हम जिलेटिन को क्यों यूज करते हैं? द रीजन फॉर दिस इज they are non-toxic in nature, they are widely used in foodstuffs and acceptable for use worldwide. It is readily soluble in the biological fluid at body temperature, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी डिलीवरी में, जब वो बॉडी के अंदर जाएगा वहां पे जाने के बाद बायोलॉजिकल फ्लूइड में उसका सॉल्युबल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका जो भी शेल है या जो भी कोटिंग दी गई है वो बायोलॉजिकल फ्लूइड में सॉल्युबल नहीं होगी, तब तक जो उसके अंदर का मटेरियल होगा या जो ड्रग होगा वो अपना काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ जिलेटिन इज इट इज रीडली सॉल्युबल इन बायोलॉजिकल फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। It form good film forming. It is a good film forming material and produce a strong flexible film, ठीक है। As per the requirement आपको हार्ड जिलेटिन चाहिए है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल चाहिए या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, जो जिलेटिन है वो डिफरेंट टाइप की फ्लेक्सिबल फिल्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। Solution of high concentration, that is 40% WIV, are mobile in nature at the temperature of 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ दी पॉलीमर्स होते हैं हाई टेम्परेचर में उनकी कंसिस्टेंसी मोबाइल नहीं रहती है, बट इन केस ऑफ जिलेटिन अगर हाई कंसंट्रेशन आप यूज करते हैं इन दी सोल्यूशन देन दे आर इन अ मोबाइल स्टेट, ठीक है। A solution in water or in water plasticizer blend undergoes a reversible change from a solution to a gel at a temperature only a few degree above the ambient, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वाटर में अगर आप ऐड करते हैं या प्लास्टिसाइजर या वाटर के साथ अगर जिलेटिन को ऐड करते हैं तो देयर इज अ चेंज इन द रिवर्सिबल चेंज इज अकर फ्रॉम सोल्यूशन टू द जेल, ठीक है। तो एज पर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड प्लास्टिसाइजर इन जिलेटिन सोल्यूशन जो चेंजेस हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है। तो कैप्सूल सेल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिलेटिन के अलावा वो है प्लास्टिसाइजर एंड वाटर। इन दोनों की कंसंट्रेशन डिसाइड करती है कि जो शेल फॉर्म होगी या प्रोड्यूस होगी वो हार्ड नेचर की होगी कि सॉफ्ट नेचर की होगी, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए प्लास्टिसाइजर अगर आप कम ऐड करेंगे जिलेटिन सोल्यूशन में तो जो रिजल्टिंग शेल होगी इट शुड बी हार्ड इन नेचर, ठीक है। अगर प्लास्टिसाइजर की कंसंट्रेशन इज मोर in the gelatin solution then the resulting जो बनेगी शेल इट इज फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। वहीं पे अगर वाटर की कंसंट्रेशन जिलेटिन सोल्यूशन में ज्यादा होगी तो जो फिल्म फॉर्म होगी वो बहुत थिन होगी, ठीक है। तो अगर बहुत थिन फिल्म होगी तो उसमें क्रैकिंग के चांसेस रहेंगे या इजिली ब्रिटल नेचर की हो सकती है ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वाटर का कंसंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट रोल करता है इन दी कैप्सूल सेल, ठीक है। तो वाटर की कंसंट्रेशन ना ही कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कम कंसंट्रेशन होगी तो जो शेल फॉर्म होगी उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा थिक हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो कैप्सूल है उसका वेट बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो शेल है वो इजिली ब्रिटल नेचर की बन जाएगी, इजिली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों रोल प्लास्टिसाइजर एंड वाटर का? यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन का टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ जिलेटिन, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप इज ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस एंड टाइप बी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जिलेटिन का प्रोडक्शन नहीं दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने बताया है देयर आर टू टाइप ऑफ जिलेटिन, टाइप ए एंड टाइप बी, ओके। नेक्स्ट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। So there are two type of the gelatin capsule, that is hard and soft. First is the hard gelatin capsule. Hard gelatin capsule is a solid dosage form in which medicament is encapsulated in a two-part empty hard gelatin capsule cell, ठीक है। So the upper and small part is called as cap and the remaining large part is called as body, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है, कैप एंड बॉडी से। जो अपर पार्ट होता है और जो स्मॉल पार्ट होता है उसे हम कैप कहते हैं और जो रिमेनिंग लार्ज पार्ट होता है उसे हम बॉडी कहते हैं,
ठीक है। तो इन केस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स देयर आर 8 डिफरेंट साइज ऑफ कैप्सूल्स शेल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इट रेंजेस फ्रॉम 000 टू 5, ठीक है। तो 000, 00, सिंगल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के साइजेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मोस्टली 0 एंड 2 साइज सेल्स को यूज किया जाता है ड्रग डिलीवरी के लिए, ठीक है। Hard gelatin capsule is consist of gelatin, plasticizin and water, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर एंड वाटर, ठीक है। मेनली इन केस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो ड्रग होता है वो ड्राई नेचर में होना चाहिए, ठीक है। लिक्विड नेचर की ड्रग्स आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। The powdered material is filled into the cylindrical body part of the capsule and the cap is placed over it, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपकी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन्स होती हैं उनमें जो कैप्सूल का बॉडी पार्ट होता है उसमें ड्रग की फिलिंग की जाती है। जब प्रॉपर फिलिंग हो जाती है देन उसके ऊपर कैप को प्लेस किया जाता है एंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मेनली इन केस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो ड्रग का साइज जो कैपेसिटी है इट रेंजेस फ्रॉम 600 mg टू 30 mg। मैम। हाँ बेटा। मैम कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए। हाँ यहाँ पे तो एक ही बच्चा शो कर रहा है। चलिए ठीक है, कर लिया मैंने एक्सेप्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। इन केस ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, बॉडी और कैप की तरह पार्ट्स नहीं होते हैं, वो एक सिंगल कह लीजिए बॉडी होती है। उस बॉडी के अंदर कोर में ड्रग फिल होती है एंड जो आउटर जो शेल होती है इट इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है, इलास्टिक नेचर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। Soft gelatin capsules are used for the administration of suspension, oil, ophthalmic product, liquid medicaments, ठीक है। Next, soft gelatin capsules are available in round shape, oval shape, tube-like shape. So there are different shapes that are found in the gel soft gelatin capsules, ठीक है। लेकिन hard gelatin capsules के जो केस में जो साइज होता है वो बड़ा छोटा होता है लेकिन उनके शेप एक ही रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इज मेड अप ऑफ जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर एंड वाटर। Mainly the plasticizer that is used in soft gelatin capsule is glycerin and sorbitol. Soft gelatin shell may contain a preservative to prevent the growth of microorganism. Next, application of capsule. In case of hard gelatin capsule, dry, solid, powder and granules and pellets are filled. But in case of soft gelatin capsule, suppository dosage form can be administered or tube-like packaging is possible in case of soft gelatin capsule. वेटनरी यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए, सिंगल डोज एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। मेनली अगर आपको टॉपिकल ऑप्थेल्मिक या रेक्टल ऑइंटमेंट की डिलीवरी करनी है सिंगल डोज के फॉर्म में, इन दैट केस हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज दोनों में डिफरेंस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के केस में जो भी ड्रग होगी वो ड्राई नेचर में होगी, वो वेट नेचर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के केस में आपका सेमी लिक्विड, लिक्विड इस तरीके की अगर डोजेस फॉर्म है तो आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है? यस मैम। Next, manufacturing of hard gelatin capsules. So the steps involved in making the empty gelatin capsule. यहाँ पे जो प्रोसेस बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जो आपकी कैप्सूल की एम्प्टी जो जिलेटिन कैप्सूल्स होती हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, ठीक है। So the steps are dipping, second is spinning, third is drying, fourth is stripping, fifth is trimming and joining, and sixth is polishing. Okay, so there are 6 steps that are involved in the making of empty gelatin capsules. ठीक है, तो पहले में क्या होता है, जो जिलेटिन सॉल्यूशन होता है उसे प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिंग प्लास्टिसाइजर एंड वाटर। देन उसमें क्या किया जाता है, मोल्ड को डिप किया जाता है। जो मेनली मोल्ड यूज किया जाता है जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए वो स्टेनलेस स्टील पिन्स होती है, मतलब पिन फॉर्म में होती है, ठीक है।
इन स्टेनलेस स्टील पिन को जिलेटिन के सोल्यूशन में डिप किया जाता है फॉर अ सफिशिएंट टाइम के लिए। जब प्रॉपर मोल्ड के ऊपर जिलेटिन सोल्यूशन की कवरिंग हो जाती है, देन उसके बाद उसकी ड्राइंग स्टेप किया जाता है। ड्राइंग स्टेप करने के बाद उसकी स्पिनिंग की जाती है, ठीक है। सॉरी, ड्राइंग स्टेप की जस्ट पहले स्पिनिंग परफॉर्म की जाती है। स्पिनिंग इसीलिए की जाती है ताकि जो जिलेटिन का सोल्यूशन है वो जो मोल्ड है, पिन मोल्ड के ऊपर यूनिफॉर्मली हर सरफेस में अच्छे से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट स्टेप था डिपिंग। जो मोल्ड्स होता है, जो पिन मोल्ड्स होते हैं, उन्हें जिलेटिन सोल्यूशन में डिप किया जाता है। सेकेंड इज स्पिनिंग। बाय यूजिंग स्पिनिंग मेथड यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग ऑफ द जिलेटिन सोल्यूशन ओवर द मोल्ड इज टेक्स प्लेस। सेकेंड इज ड्राइंग। जब यूनिफॉर्मली जिलेटिन सोल्यूशन स्प्रेड हो जाता है उसके बाद उसकी ड्राइंग परफॉर्म की जाती है। ड्राइंग परफॉर्म करने के बाद स्ट्रिपिंग की जाती है। स्ट्रिपिंग मीन्स होता है कटिंग करना, ठीक है। ड्राइंग होने के बाद जो कैप्सूल्स हैं उनको कट किया जाता है, स्ट्रिप किया जाता है। देन उसके बाद उनकी ट्रिमिंग एंड ज्वाइनिंग की जाती है। ट्रिमिंग मीन्स उनके जो एजेस होते हैं कैप्सूल के उनको शार्प किए जाते हैं, और जो कैप्सूल का जो बॉडी और कैप पार्ट होता है उन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइनल जो कैप्सूल बन गया है, अब उसके ऊपर वैक्स की पॉलिशिंग की जाती है फॉर प्रोवाइडिंग दी शाइनिंग, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा ये स्टेप्स? यस मैम। ठीक है, तो देयर आर 6 स्टेप्स इन दी जिलेटिन कैप्सूल, एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। ये जो अभी मैंने जितने भी स्टेप्स आपको बताए इनका यहाँ पे डिटेल दिया है। डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड ज्वाइनिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सिपिएंट दैट आर यूज्ड इन फिलिंग ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। अभी तक जो कंपोनेंट बताए थे, फॉर एग्जांपल कलरेंट, वेटिंग एजेंट, जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर, ये जो जितने भी जो पहले बताए थे कंपोनेंट, वो जिलेटिन शेल में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जो कैप्सूल के अंदर जो ड्रग की फिलिंग की जा रही है, उस ड्रग के साथ और क्या क्या एक्सिपिएंट यूज किए जा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। तो along with the drug, the excipient that are used are as follows. First is the diluent and filler. Diluent and filler are used with the drug to provide or increase the concentration of the drug, ठीक है। डायल्यूएंट हम क्यों ऐड करते हैं? अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम डायल्यूएंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो जो मेनली डायल्यूएंट एंड फिलर दैट आर यूज इन केस ऑफ कैप्सूल्स आर लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन, सेलुलोज एंड स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज करना जरूरी है क्योंकि जब तक आपका जो कैप्सूल है उसके अंदर का मटेरियल डिसइंटीग्रेट नहीं होगा वो बायोलॉजिकल फ्लूइड में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो मेनली डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं कैप्सूल फिलिंग में, दे आर सोडियम स्टार्च गैल्यूएट, प्री जिलेटिनाइज स्टार्च यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लाइडेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। ग्लाइडेंट एंड ल्यूब्रिकेंट जो मेनली यूज किए जाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम स्टेरेट एंड कैल्शियम स्टेरेट, ठीक है। ग्लाइडेंट एंड ल्यूब्रिकेंट इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि जब बॉडी में ड्रग की फिलिंग की जाती है तो जो पूरा बल्क में जो भी ड्रग होता है विद एक्सिपिएंट हॉपर में ऐड किया जाता है। तो जो हॉपर में जो ड्रग के मटेरियल है और जो एक्सिपिएंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन जो है उसे रिड्यूस करने के लिए हम ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट एजेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। Excuse हाँ me, बेटा। some students are requesting for joining the meeting. ओके So, excipient that are used in the filling of the capsule, diluent, filler, disintegrating agent, glidant and lubricating agent, ठीक है। So these are the mainly agent that are used with the drug as excipient, okay। Next, हार्ड कैप्सूल के केस में अगर आपको ड्रग की फिलिंग करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड, ये जो स्लाइड है ये मेनली फॉर द फिलिंग ऑफ द हार्ड कैप्सूल है, ठीक है। तो जो हार्ड कैप्सूल है अगर आप हैंड ऑपरेटेड यूज कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे प्रोसीजर मेंशन किया है, ठीक है। आज के टाइम में जो हार्ड कैप्सूल्स है ऑटोमेटिक मशीन्स भी अवेलेबल हैं।
अगर आपको स्मॉल स्केल में अगर फिलिंग करनी है ड्रग की, देन आप हैंड ऑपरेटेड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल अगर आपको प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना है, ठीक है। तो जो हैंड ऑपरेटेड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ बैट with 200 और 300 होल्स। सेकेंड, अ कैप्सूल लोडिंग ट्रे, एक बैट होता है जिसमें 200 से 300 होल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही है बेटा, साइड में एक पिक्चर मैंने लगाई है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बैट बना हुआ है जिसमें 200 से 300 होल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकेंड है कैप्सूल लोडिंग ट्रे, जहाँ पे कैप्सूल की लोडिंग की जाती है। लोडिंग ट्रे अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे लोडिंग ट्रेस दिखा हुआ है जिसमें एग्जैक्ट नंबर वही दिया हुआ है 200 300 होल जो आपके बेड में जितने होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड है पाउडर फिलिंग ट्रे। पाउडर फिलिंग ट्रे मीन्स हो गया है जिस ड्रग की फिलिंग आपको करनी है हार्ड कैप्सूल में, उसके लिए हम पाउडर फिलिंग ट्रे को यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज अ पिन प्लेट हैविंग 200 और 300 पिन्स करस्पॉन्डिंग टू द नंबर होल्स इन द बेड एंड केप होल्डिंग ट्रे, ठीक है। पिन होल्डिंग ट्री मीन्स होता है पिन होल्ड प्लेट्स जो होते हैं उनके भी एग्जैक्ट नंबर वही होता है जो बेड में प्रेजेंट जितने होल्स का नंबर होता है उतने ही पिन्स में भी पिन प्रेजेंट होते हैं प्लेट में, ठीक है। तो ये जो पिन प्लेट होता है ये प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ है अ लीवर हैंडल, फोर्थ है अ कैम हैंडल एंड सेवेंथ है अ प्लेट फिटेड विद रबर टॉप्स, ओके। So these are the components that are used in the hand operated gelatin capsule filling machine, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर हुई बेटा? ठीक है। तो मेनली इन केस ऑफ हैंड ऑपरेटेड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन ऑल द कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो जो मटेरियल यूज किया जाता है मशीन को बनाने के लिए वो आपका स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट है वर्किंग। फर्स्ट हम क्या करते हैं, द एम्प्टी कैप्सूल्स आर फिल्ड इन द लोडिंग ट्रे एंड इट इज प्लेस्ड ओवर द बेड, ठीक है। पहले जो आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लोडिंग ट्रे शो किया है मैंने विद 200 और 300 ओल्स, ठीक है। इस लोडिंग ट्रे में क्या करेंगे, जो एम्प्टी कैप्सूल्स है उनको फिल करेंगे। फिल करने के बाद उस बेड के ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। इस पिक्चर में स्लाइड में देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है दिख रहा है सबको बेटा? फर्स्ट फिगर दिखाई पड़ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो अगर आप पहली पिक्चर को देखेंगे तो ये आपका ट्रे है जिसमें कैप्सूल को फिट किया गया था। अब इस ट्रे को बेड के ऊपर प्लेस किया जाता है, ठीक है। बेड के जस्ट ऊपर उसे रखा जाता है, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, अ कैम हैंडल इज ऑपरेटेड टू सेपरेट द कैप्सूल कैप फ्रॉम देयर बॉडीज। अब क्या करते हैं, कैप्सूल की फिलिंग आप तभी कर सकते हैं जब उसका कैप एंड बॉडी एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो आपकी लोडिंग ट्रे थी कैप्सूल लोडिंग ट्रे उसे बेड के ऊपर प्लेस करने के बाद कैम हैंडल की हेल्प से क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके जो कैप एंड बॉडी है कैप्सूल के दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। थर्ड, देन उसके बाद क्या करेंगे, अ पाउडर ट्रे इज प्लेस्ड इन अ प्रॉपर पोजीशन एंड फिल्ड विद अ एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ पाउडर विद अ स्क्रैपर। फिर क्या करते हैं, जब आपका बॉडी एंड कैप दोनों अलग अलग हो जाता है देन क्या करते हैं, सेकंड फिगर अगर आप देखोगे तो जो पाउडर ट्रे होती है उसमें जिस भी ड्रग की फिलिंग करनी है उस ट्रे में फिल किया जाता है। उस ट्रे को फिर एग्जैक्ट पोजीशन पे लगाया जाता है बेड के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप उसे बाय द हेल्प ऑफ स्क्रैपर अगर आप उसे फिल करोगे तो जो बॉडी पार्ट है उसमें जाके वो फिल हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो एक्सेस अमाउंट में पाउडर है उसे आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग ब्रश, ठीक है। देन क्या करेंगे, द पिन प्लेट इज लोअर्ड एंड द फिल्ड पाउडर इज प्रेस्ड बाय मूविंग द पिल डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब जो आपकी पिन प्लेट है उसे क्या करेंगे, उसे नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर प्रेसिंग द पिन प्लेट इज रेज्ड, द रिमेनिंग पाउडर इज फिल्ड इनटू द बॉडीज ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो पिन प्लेट है वो हेल्प कर रहा है जो पाउडर जो ट्रे जिसमें पाउडर फिल था वो जो कैप्सूल की बॉडी पार्ट है उसमें जाके अच्छे से फिल हो जाए,
ठीक है. Then the powder trays is removed after it complete filling and the cap holding tray is again placed in the position. फिर क्या करेंगे, जब आपका कैप पूरी तरीके से बॉडी में जब पाउडर पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तब पाउडर ट्रे को हटा देंगे और जो आपका पहला वाला जो प्लेट है, अगर आप सेकंड पिक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर आपने अगर एक ट्रे दिख रही होगी जिसमें होल्स होल से बने हुए हैं, यहाँ पे आपकी कैप आके एडजस्ट हो जाती है. ठीक है, तो जब आपका पाउडर पूरी तरीके से कैप्सूल में फिल हो जाता है, ट्रे को हटाने के बाद दोबारा से उसे क्या करते हैं, जो आपकी बेड है, जो बेड की पोजीशन उस पर दोबारा से लाके वहां पे प्लेस कर देते हैं. ठीक है, प्लेस करने के बाद क्या करते हैं, द प्लेट विद द रबर टॉप इज लोअर्ड एंड द लीवर इज ऑपरेटेड टू लॉक द कैप एंड बॉडीज. फिर क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रबर टॉप प्रेशर अप्लाई करते हैं. प्रेशर अप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि जो कैप बॉडी है एंड कैप वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाए. ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो आपकी फिल्ड कैप्सूल्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा. ठीक है बेटा, वर्किंग क्लियर हुई? एक बार फिर से बताओ. यस मैम, फिर से बता दीजिए. चलिए, अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए आपका बेड है. ठीक है, बेड में पहले आपने क्या किया, बेड में आपके 200 से 300 होल बने हुए हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया है. अब इस बेड के ऊपर आप क्या करोगे, एक ट्रे प्लेस करोगे. उस ट्रे में भी एग्जैक्ट उतने ही होल्स होंगे जितने आपके बेड पे हैं. ठीक है, और उन होल्स की पोजीशन वहीं पे होगी जहां पे आपके बेड के होल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है जो एम्प्टी शेल्स होती हैं, जो हार्ड कैप्सूल्स की जो एम्प्टी शेल्स होती हैं, उन्हें पूरा क्या करते हैं, लोडिंग ट्रे में फिट कर देते हैं. बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स लोडिंग ट्रे में पूरा 200 से 300 होल्स में फिल कर दिया जाता है. फिल करने के बाद क्या करते हैं, अब इस लोडिंग ट्रे को क्या करेंगे, उस बेड के ऊपर लाके रख देंगे. तो जब आप बेड के ऊपर लाके रख दोगे तो क्या होगा, सेम जिस पोजीशन पे होल्स प्रेजेंट होंगे उसमें जाके अपनी आपकी जो कैप्सूल की बॉडी है वो पूरा आके फिट हो जाएगी. यस मैम. ठीक है, अब फिट हो गई है. फिट हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप्स क्या होगा, अब हमें क्या करना है, कैप्सूल के बॉडी और कैप दोनों को हमें अलग अलग करना है. ठीक है, क्योंकि जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे तो हम पाउडर की फिलिंग नहीं कर पाएंगे. तो पाउडर की फिलिंग करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बाय द हेल्प ऑफ कैम हैंडल, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, अगर पिक्चर में आप देखोगे कैम हैंडल होता है. ठीक है, ये एक कैम हैंडल है जो बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स आप यूज करते हैं. इसकी हेल्प से क्या करते हैं, प्रेस करके जो कैप है उसे आप हटा दोगे बॉडी से. ठीक है, जैसे आप लोग इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन कर लीजिए, जैसे आप लोग कोई भी कंटेनर की कैप जब खोलते हो तो कैसे खोलते हो, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं फिर खोलते हैं. ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है. पहले आप कैप्सूल की फिलिंग कर दोगे बेड के ऊपर, उसके बाद बॉडी हार्ड कैप्सूल का जो बॉडी और कैप पार्ट है उसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, कैप हैंडल का यूज करेंगे. तो ये हैंडल हेल्प करता है कैप और बॉडी को एक दूसरे से अलग करने में. ठीक है, अब अलग करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो अब दोनों पार्ट्स अलग अलग हो गए. पार्ट्स अलग हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, पाउडर ट्रे लेके आएंगे. पाउडर ट्रे में क्या होता है, जिस भी ड्रग की फिलिंग आपको हार्ड कैप्सूल के अंदर करनी है वो मटेरियल आप पाउडर ट्रे में डालते हो. ठीक है, पाउडर ट्रे में डालने के बाद इस पाउडर ट्रे को एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे लाके रखेंगे जहां पे आपके बेड के होल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस है एक दूसरे के ऊपर रख के ही हो रहा है. इसकी लोकेशन चेंज नहीं होती है, पोजीशन चेंज नहीं होती है. हर किसी के होल एक दूसरे के एग्जैक्टली जस्ट ऊपर होते हैं. ठीक है, तो पाउडर ट्रे आपका एक ट्रे है जिसमें क्या करते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है, फिगर दिखाई पड़ रहा है बेटा. अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पर्सन है जिसका हैंड दिखाई पड़ रहा है, वो पाउडर को मतलब स्प्रेड कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है. यस मैम. ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी पाउडर ट्रे होती है उसमें बीच में होल्स होते हैं. तो क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ दीज होल्स क्या होगा, जो पाउडर है वो कहाँ जाके आप चली जाएगी, जो आपका बॉडी पार्ट था, जो कैप्सूल का जो बॉडी पार्ट है उसमें जाके फिल हो जाएगी. ठीक है,
आप क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पिन प्लेट्स, ये आपके जो पिन प्लेट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, जो भी पाउडर आपने बॉडी के अंदर डाला है उसे अच्छे से प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम पिन प्लेट्स को यूज करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे जस्ट एग्जैक्टली ऊपर आप देखोगे तो पिन प्लेट प्रेजेंट है, दिखाई पड़ रहा है? यस मैम। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे सैंडविच मेकर होता है वैसे ही है ना? दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। ठीक, तो क्या करते हैं, पाउडर की जब फिलिंग हो जाती है उसके बाद जो पिन प्लेट्स होती है उसको क्या करेंगे, अब प्रेस करेंगे, कहाँ पे, जो आपका बॉडी में जो पाउडर भरा हुआ है उसके अंदर प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर अच्छे से फिल हो जाएगा और अच्छे से प्रेस हो जाएगा। अब प्रेस हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, जो पाउडर ट्रे है उसे अच्छे से पूरा जो पाउडर ट्रे है ये पिन प्लेट इसीलिए अप्लाई किया जाता है, अगर मान लीजिए ड्यूरिंग फिलिंग अगर किसी भी बॉडी में पाउडर फिलिंग करते समय अगर कोई गैपिंग रह गई होगी तो वो पिन प्लेट की हेल्प से क्या करेंगे, उसे जो गैपिंग है उसे हम हटा देंगे। गैपिंग हटाने से क्या होगा, तो जो अमाउंट हमें फिल करना है हर बॉडी में वो आप एग्जैक्टली भर सकते हो। ठीक है, तो पिन प्लेट अप्लाई करने के बाद जब पूरी तरीके से कैप में पाउडर की फिलिंग हो जाएगी, अब हमें क्या करना है, पाउडर की फिलिंग हो गई है बॉडी पार्ट में, अब हमें कैप को दोबारा से उसके ऊपर प्लेस करना है। तो कैप को प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी पाउडर ट्रे है उसे रिमूव करेंगे एंड जो आपकी कैप है जिसमें आपका जो ट्रे जिसमें कैप प्रेजेंट है उसे अगेन उसी पोजीशन पे प्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब जस्ट बेड के ऊपर। ठीक है, प्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे, अब हमें कैप को बॉडी से जोड़ने के लिए हमें कैप के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो कैप के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करने के, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो कैप होगी वो बॉडी के साथ जाके फिक्स हो जाएगी। ठीक है, एंड फाइनली जब प्रेशर अप्लाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो आपकी फिल्ड कैप्सूल्स होगी उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, इस पिक्चर ये देखिए बेटा, जो पिक्चर्स मुझे मिली हैं वो मैंने लगा दी है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, वर्किंग क्लियर हो गई है हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन की? बेटा किसी को अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिए। मैम बहुत अच्छे से आ गया समझ में। आ गया? यस मैम, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आगे सो लेट्स ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के केस में क्या होता है, जो आपकी कैप्सूल्स होती हैं उन्हें पहले बना लिया जाता है, बनाने के बाद फिर ड्रग की फिलिंग की जाती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के केस में कैप्सूल और ड्रग दोनों का काम एक साथ होता है, मतलब आपकी कैप्सूल भी एक साथ बनेगी, उसी के अंदर जिस भी मटेरियल की मेडिकामेंट की फिलिंग करनी है दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगी। ठीक है,